Assalamu alaikum. I'm Rabia Saad from Zabis Media Sciences Department. Uh, as part of today's journalism webinar, we are expecting a really interesting conversation over here. जो COVID-19 का पूरा एक्सपीरियंस है, उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन है, और इंफॉर्मेशन का जो मेजर सोर्स है वो मीडिया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मीडिया डाइवर्स फॉर्म्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं। लिविंग इन पाकिस्तान, एज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस, हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वी हैव डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो द मोस्ट वाइल्ड सोशल मीडिया। और यही वजह है कि आज जो पैनल है हमारे साथ, उसमें वी do have a diversity as part of our guests. Um, I'll move towards their formal introductions. Uh, we have Haya Fatma Iqbal with us. Haya is an Academy and two-time Emmy Award-winning documentary filmmaker. She directs, produces, and shoots films across Pakistan. Haya is an Acumen Fellow and a Fulbright Scholar. She holds a master's in news and documentary from New York University. She also teaches journalism. Then we have Zarar Khorosab. Khorosab is a current affairs commentator and analyst. He is the co-host of Zara Hatke, a current affairs program on Dawn News. He also writes regularly for various publications and has maintained a position as the magazine editor for the Express Tribune. So Khorosab has worked extensively in both print and electronic media. Then we have Hamna Iqbal Beg, who has been Zabis alumna, currently a Commonwealth scholar studying MA in multimedia journalism at University of Kent. She has been a contributor in international publications as part of DICE Young Storymakers program, and she has also written for national publications such as Dawn, and worked with multiple electronic media channels. I welcome all of you all as part of this session. सबसे पहले जो मेरा आप तीनों से सवाल होगा, that is कि जो ये पूरा पैंडेमिक का एक्सपीरियंस है, it's more than 1 year into this whole pandemic situation. आप लोगों का individually in your professional capacity क्या experience रहा है? So if there have been some major challenges, some noteworthy experiences जो कि आप लोग share करना चाहें as part of your professional capacity. So Mr. Khoro, I would like to begin with you. देखिए, एक जो बुनियादी मसला था वो था कि हम लोग काफी जाहिल होते हैं. So there was a very steep learning curve in terms of medical terminologies, how exactly do viruses work, how exactly do pandemics spread, what does it mean when you say that, okay, it's not particularly airborne, but it is being carried in drops of saliva. So, because one problem that we had initially is that it wasn't so much lack of information, it was also a deluge of often conflicting information. ठीक है, और ये मैं मतलब लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा. अगर आप रॉयटर्स या इंटरनेशनल वायर एजेंसीज को भी देखें, sometimes the headlines themselves would be misleading. Okay, that if they say, and they have to be, because headline has to be short. So say that there's a 100-page medical analysis or report done by, say, Imperial College of London. There's a projection. ठीक है? So how do you encapsulate that into a news story while not having it be misleading? ठीक है कि okay, heat will stop transmission. Now, any kind of medical, that's what the headline comes in. So people take the headline because आपको पता है कि हम headline से आगे कोई पढ़ता नहीं है as a general rule. They will take that headline and they'll be like, oh, this is proof, without realizing that a medical journal is not going to say it so unequivocally, right? वो मतलब हतमी बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि based on current data. So one thing we had to learn is कि don't make sweeping pronouncements. Because frankly speaking, उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है. Initially we had reports from the WHO, for example, कि आपको masks पहनने की जरूरत नहीं है. So when you're reporting that news, you can say कि
WHO कह रहा है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें बड़ा शौक है कि हम अकले कुल बनने का हमें बड़ा शौक होता है, तो हम कहते हैं कि आपको आज से मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. Now, this is not the first time we've seen this sort of thing happen. जैसे कि अगर आप पोलियो की रिपोर्टिंग देखें, तो publications like Ummat have been incredibly, I would say, criminally misleading. ठीक है? और होता क्या, और ये मैंने केसेस खुद भी देखे हैं, और मैंने on mainstream TV I've seen tickers run, पोलियो कतरे पीने के बाद बच्चा जान बहक हो गया. अब when you look into the story, sometimes you will find कि जी 2 दिन पहले उसने कतरे पिए थे, and then he was crossing the road and a car hit him and he died. ठीक है, टेक्निकली दे करेक्ट, पहले उसने पोलियो के कतरे पिए, उसके बाद वो जान बहक हो गया. ठीक है, बट द हेडलाइन कनेक्ट्स द टू and then it spreads like wildfire. So in COVID we saw a lot of these things happen. We had to try and develop a lot of capability very quickly. And where you can't develop that capability, then you do what is called, like, you know, the way a journalist has to protect himself, that according to this report, it seems based on current data that, अब ये मसला ये है कि आपने बात करनी है 2 हरफी, लेकिन 20 उसमें जो अल्फाज आप ऐड करेंगे वो इफ्स, एंड्स एंड बट्स आएंगे. अच्छा, फिर आप पे क्रिटिसिज्म होती है कि यार आप कोई कंक्लूसिव बात क्यों नहीं करते. लोग कि भाई मेरी जान, मैं डॉक्टर फौसी नहीं हूं, मैं फहीम यूनिस नहीं हूं, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं लोगों को कोट कर रहा हूं. आधे वक्त उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, यू नो. सो a little humility, I think goes a very, very long way, along with the realization that you cannot simply become a medical expert overnight. And anyone who is claiming that they are become a medical expert overnight are either delusional or just plain lying to you. That was my takeaway. He's on the door, by the way. I broke it. Yes, Haya. आई थिंक हमारे साथ मेरा काम क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का ज़्यादा है, तो हमारे साथ तो पैंडेमिक ने जो किया वो ये कर दिया कि हमारे तो पूरे काम की बुनियाद ही हिल गई, राइट. क्योंकि हमारा काम ये होता है कि हम किसी के साथ एम्बेड होते हैं, चाहे वो कोई फैमिली हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई इलाका हो. हम जाते हैं वहाँ पर, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों के घरों के अंदर जाते हैं. मतलब ज़ाहिर है वो तो सभी जर्नलिस्ट जाते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ न कमाल नहीं है. लेकिन हमारा सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम क्योंकि लंबी ड्यूरेशन की चीज़ें बना रहे होते हैं और वो मटेरियल ज़्यादा विजुअल होता है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी स्पेस में और किसी मतलब पीपल एंड प्लेस के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुक हमें अपनाना पड़ता है और ज़्यादा देर तक अपनाना पड़ता है. हम किसी जगह पे जाते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स को विजुअली कैप्चर करना. कोई लोग हैं तो सिर्फ 3 मिनट की क्योंकि रिपोर्ट नहीं है, एक 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, तो जाहिर है आप उसमें महीनों गुजारते हैं. वो सारी चीज़ें अचानक से बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि आप खुद भी अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो रहे हैं और आपका दिल चाहे कि आप गैर जिम्मेदारी के साथ कहीं भी चले जाएं, तो इन दी एंड आप किसी और के घर में जाके उनको पोटेंशियली अनसेफ कर सकते हैं. या अगर आप बहुत ख्याल रखते हो लेकिन आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहाँ पर लोगों को कोई ज़्यादा खास ख्याल रखने की आदत नहीं है या थोड़ी लापरवाही है, तो वो जो सारे मसले थे वो अचानक से आ गए. और उसका मतलब आई गेस उसकी डाउन साइड ही ज़्यादा रही अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, काम के हिसाब से देखें, फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव. लेकिन जिस तरह से आई थिंक डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री काम करती है, उसके अंदर अक्सर जो है वो वेस्ट आपको चीज़ें फंड करता है, या बाहर से कोई एक शख्स आता है जो पैराशूट जर्नलिज्म करने के लिए आता है और वो साइड में कुछ ब्राउन पाकिस्तानीज को हायर करता है अपने साथ ऑन द ग्राउंड. तो सडनली वो डायनामिक्स चेंज हो गए क्योंकि गोरा आ नहीं सकता था मुल्क में. So we were essentially trusted with more work and trusted with more responsibility, which usually we have to fight for. तो इस बार हमें था कि सही है, तुम तो ये काम रिमोट ही डायरेक्ट करोगे क्योंकि हमें पता है कि काम कैसे करना है और हम यहाँ पे हैं. So I feel like if you look at it from the more like decolonization perspective, बहुत फायदा हुआ है. मगर generally obviously just the fact कि काम कम हुआ है क्योंकि काम में खतरा ज़्यादा हो गया है. जैसे अभी ज़रार कह रहे थे कि ज़ाहिर उनके काम में तो मतलब रोजाना का, क्योंकि आप एक अखबार छाप रहे हैं या आप एक शो कर रहे हैं टीवी पर, तो उसमें तो जो अल्फाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना है, मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स को एक्यूरेसी है, वो तो बहुत क्रेजी है. हमारे उसमें जो है उसके बैकग्राउंड पे दूसरी चीजें कि क्या होगा, हम इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं इफ वी कांट इवन गो टू अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ट्रैवल करके एक्सटेंसिवली जाना है, तो अब क्या इज दिस ट्रैवलिंग वर्थ इट और नॉट.
तो आई थिंक वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले सवाल हमारे पास ज्यादा थे एज कम्पेयर टू पीपल हु वर्क एक्टिवली इन न्यूज रूम ऑन अ डेली। जी, Hamna, how has your experience been? Personally, my experience was quite challenging because as a young journalist, बहुत कोई unprecedented time था, and this was, एक बहुत ही unusual situation थी, which required us to do a lot of learning hands-on, and also the fact that when the pandemic hit the world and Pakistan went into lockdown March, so we all were sent home and we were working from home. So that even made it more challenging because उसका मतलब था कि now आप न्यूज़रूम में आप अपने colleagues के साथ नहीं थे, आप वो learning experience share नहीं कर सकते थे, और बहुत सारे ऐसे decisions थे तो आपको stories करते वक्त खुद लेने पड़ रहे थे, ठीक है? Obviously there's so much contact that आप एक हद तक अपने editor के साथ contact में रह सकते हैं जब आप stories कर रहे होते हैं, even आप work from home कर रहे हो, but वो जो एक gap था उसने इस काम को और ज़्यादा challenging बना दिया। एंड क्योंकि अब आप उस न्यूज रूम एनवायरनमेंट के अंदर नहीं थे, यू वुर वर्किंग फ्रॉम होम। मैं पर्टिकुलरली उसका कल्चर सेक्शन कवर कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली कोविड जो था इट वाज एवरीवेयर, सो इवन कल्चर सेक्शन के अंदर जो है हम प्राइमरीली सिर्फ कोविड न्यूज के ऊपर फोकस कर रहे थे, लाइक व्हाट आर सेलिब्रिटीज सेइंग अबाउट कोविड, ठीक है, पब्लिक सर्विस मैसेजेस क्या हैं, डिड समवन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट द वायरस एंड स्टफ लाइक दैट। उस तरह की चीजें जो हैं उससे वो थोड़ा उस तरह चैलेंजिंग था डेफिनेटली मेरे लिए पर्सनली, लेकिन अगेन इट बहुत ज्यादा जो है वो लर्निंग का मौका मिला, बहुत सारी जो है वो नई चीजें सीखी ली, स्पेशली क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि आपको सिर्फ वो बीट नहीं करनी होती जो आप जिस पर हो, ठीक है, यू आर समटाइम्स क्योंकि वर्कलोड इतना होता है, यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू अदर बीट, यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कवर अप फॉर सम अदर पीपल, एंड दैट वी आल्सो हैड टू लर्न कि किस तरीके से इस तरह की स्टोरीज कवर की जाती। ओके, अच्छा, जो करंट पैंडेमिक है उसकी टेक्निकलिटी पे आने से पहले जो पैंडेमिक से पहले भी, मतलब जैसे कि मैंने आप तीनों का काम फॉलो किया, आपका ज़रार साहब आपका शो फॉलो किया, हया का की डॉक्यूमेंट्रीज और her social media participations, I've been following her, हमने आपकी स्टोरीज भी फॉलो करी। आप लोगों ने जितनी भी कम्युनिटीज में थ्रू योर जर्नलिस्टिक वर्क और योर रिपोर्टिंग, जैसे जो भी आपकी इंटरवेंशन रही, ये आप लोग एक्सपीरियंस शायद आप लोग एग्री करेंगे कि our society was already struggling, ठीक है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, मोरली हो, और आप लोग जो स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, इट वाज टफ, it was already tough, we were already going through a complicated society or complicated situations. जब पैंडेमिक आ गया तो ऑब्वियसली उस सिवियरिटी मल्टीप्लाई हो गई, तो जो the issues or the stories which were closer to your heart, in what ways do you think कि वो मजीद वल्नरेबल हो गए, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और कितना मल्टीपल फोल्ड it got enhanced, so उसको आप किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, because you were already a part of the process and now this COVID happened in the middle of it, so वो issues कहाँ हैं, वो stories कहाँ देखते हैं आप? जी देखिए, इफ आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, वो चीजें ही तो स्टोरीज बनी फिर ना। अब आप देखें कि अब अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स, ठीक है, अच्छा जब ये आई थी, एंड आई एम नॉट पैटिंग माई सेल्फ ऑन द बैक फॉर दिस एट ऑल, ठीक है, जब ये आई थी लास्ट ईयर व्हाट February आई थिंक फर्स्ट केसेस वर डिटेक्टेड, या ऐसे ऐसे ही कुछ था ना। तो मैं बैठा हुआ था, मुझे याद है मैं बैठा हुआ था वसुतुल्लाह खान के साथ, मैंने कहा बॉस ये ना ये अभी सीन होने वाला है। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जनरली आई एम अ पेसिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, आई ऑलवेज फील के एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, एवरीबॉडी वी आर ऑल गोइंग टू डाई हॉरिबली, and that is my defense mechanism, because then when things are only 50% destroyed and I'm not dying horribly, मैंने कहा यार देखो यार अच्छा हुआ यार बचत हो गई। Okay, so these are the little tricks I play with myself. You can play them with yourself if you want. Not gonna judge you. So what was I saying? जी, तो I said that क्योंकि मैं थोड़ा सा कीड़ा हूँ हिस्ट्री का, right? So I went and I studied the history of just about every single pandemic we have ever had. और मैंने नोट किया, मैंने कहा यार हर 100-150 सालों के बाद ये होता है, so we are due. Then I started looking at the history of the closest analog to the COVID pandemic, which was the Spanish flu. अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसको स्पेनिश फ्लू क्यों कहा जाता है, नॉट बिकॉज कि स्पेन में शुरू हुआ था,
okay, because it was World War I, and उस वक्त everybody was doing wartime censorship. So the British press didn't want to tell their people कि यार एक तो जंग चल रही है और ऊपर से लाखों लोग एक बीमारी से मर रहे हैं ना. They didn't want to cause panic. Spain was neutral in the war. So their media was the only media that was reporting on it. तो बेचारों के साथ लेबल लग गया स्पेनिश फ्लू. हालांकि स्पेन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है यार, बेचारे पता नहीं क्यों ऐਵੇਂ उनका रिकॉर्ड लग रहा होता है. But be that as it may, so I had this feeling that something terrible is going to happen. And then I also knew that in all the plagues that the world has been hit with, only one plague has really resulted in, over the mid to long term, in some degree of social justice, or वो था Black Plague. Every plague afterwards, and especially in this modern world, we realized very early on that people were calling it the great equalizer. कि यार नहीं, देखें अमीर भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे. To some extent, that's true. But what the plague has done, what this pandemic has done, is reinforce existing divides and existing inequalities. It is the great divider. It is the great accelerator of trends that already existed in global society. So what was bad became worse. People who were up to no good were up to even more no good, because a lot of things that you would now get covered in the news cycle, things that would become news, a multiple murder, a child molestation, it is no longer news, because your first 6 headlines are all COVID, 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 COVID. उस चीज के आड़ के अंदर ना जी बहुत चीजें छुपी हैं. The massive rise in domestic violence, completely unreported. अच्छा, रिपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारा एनेक्डोटल होता है. आप कहां से डेटा लेंगे जब लोग अपने घरों में बंद हैं? There was so much else that went on, so many stories that we just could not focus on. And on an ordinary day, in an ordinary week, that would have been my lead story. लेकिन अब क्या है कि बस सिर्फ COVID, COVID, COVID. So that happened, and this is not going away, baby. This entire year is going to be a plague year, and probably the year after that is going to be a plague year. This is very much here to stay, and the effects that are being caused by it, you're only really going to understand them in 6 months or a year down the line, and then that should become the story. So, Asan Alfaz, and I'll just shut up now because I know I talk too much. We will always have a story. It's just a question of which one you particularly at that point in time want to focus on. Yeah, that's it. Fasting always pushes for the parents to go Gee, Haya, how would you respond? Yeah, I would completely agree with Zarar on this. I think ये वही वाली बात है कि कहानियाँ तो हैं, लेकिन कहानियाँ सुनाने का कौन सी कहानी सुनाने का कौन सा मौका है, आई थिंक ये डिपेंड करता है. जब हम डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिनों से कुछ एथलीट्स को फॉलो कर रही थी जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, और मतलब अचानक से वो पूरी स्टोरी जो कि पाकिस्तान में जनरली इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है यहाँ पे और क्रिकेट है, इट्स ऑलवेज अ रेलेवेंट स्टोरी टू पाकिस्तान, राइट? बट अब आप अचानक किसी जगह पे हैं जहाँ पे क्रिकेट तो एक ऐसी लग्जरी है, मतलब क्रिकेट के बारे में सोचना भी गुनाह है ना, कि आपको क्या लगता है कि यहाँ लोग मर रहे हैं, आप क्रिकेट के बारे में सोचेंगे? आपको ये डॉक्यूमेंट्री बनानी है सब कुछ छोड़ के? तो वो जो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इवन फॉर हमना, जैसे हमना भी कल्चर का जिक्र कर रही थी, मतलब सडनली art, culture, sports, all of those things that make our society maybe a little bit better than what it is, a hot mess, वो चीजें तो हो ही नहीं रही ना. तो जब हो ही नहीं रही तो आप क्या एक्शन जाके कैप्चर करेंगे, आप क्या चीज जाके कवर करेंगे? या इवन जब शुरू में मुझे बड़ी, एक्चुअली मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ जनरली. तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब पैंडेमिक आया तो मुझे हुआ कि शायद इस बहाने जो एक मास कंजम्पशन के ट्रेंड्स हैं और कुछ जो है क्या कहते हैं कंज्यूमरिज्म के जो है वो ट्रेंड्स हैं, और शायद क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट, मतलब क्लाइमेट चेंज नॉट नेसेसरली बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे अब ज्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, जो सिर्फ मेरे ख्याल है शुरू के 2 महीने हुई जब हुआ कि वो चिड़िया नजर आ गई, वहाँ पेंगुइन नजर आ गया, वहाँ आसमान साफ हो गया. लेकिन उसके बाद तो मतलब दुनिया जिस तरह मशीन की तरह चलती है, देयर वाज सच अ लाइक एक हैजान क्रिएट हुआ था कि दुनिया को खोलो, दुनिया को वापस खोलो, दुकान खोलो, ये खोलो, वो खोलो, राइट? ऑब्वियसली मतलब करोड़ों लोगों की रोजियां उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन सडनली अभी लोग खुशी मना रहे थे, मतलब खुशी तो खैर क्या मना रहे थे, लेकिन एक चीज पे थोड़ा सा पॉज, पीछे बैठ के पॉज करके देख रहे थे कि वाह हम किस तरह से ऑपरेट करते थे और अब ये जहाज उड़ना बंद हो गए हैं दुनिया में.
तो इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ कैन बी डन विदाउट फ्लाइंग टू अनदर कंट्री एज वेल, राइट? इस तरह की सोचें आ ही रही थी अभी, तो इट वाज ओनली सिंकिंग इन स्लोली कि किसी ने कहा कि बस सब खोल दो, और फिर पाकिस्तान भी खुल गया, बाकी मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए, और उसके बाद हम फिर वहीं पे हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि इस पैंडेमिक के जरिए शायद इन्वायरमेंट और क्लाइमेट और जो हमने हाल किया है अपने पूरी दुनिया का, उस पर शायद इंटरेस्टिंग ज़्यादा रिपोर्टिंग हो सकती और कुछ मौका मिलता सोचने का। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया में जल्दबाजी इतनी है कि वो सारी चीज़ें भी नहीं हो। इनफैक्ट अगर आप अब फिर से उसके बारे में बात करें तो आई थिंक काउंटर आर्गुमेंट फॉरन से ये है कि आप क्या चाहते हैं कि सब अपनी नौकरियां खो दें और सब कुछ बंद हो जाए। तो जो एक गुफ्तगू की जो गुंजाइश थी वो भी नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मसला यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी डेथ्स होती हैं, इतना इतना हॉरिफिक इसका इम्पैक्ट है कि आप उसके हार्ड न्यूज़ करते करते ही मेरा ख्याल है दिन पूरा हो जाता है कि कि उसके बाद जो है ना, मतलब कोई कसर ही नहीं रहती। फिर वो जो उसकी डीपर एस्पेक्ट्स हैं उनकी उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम उसको ज़्यादा कवर करें या टाइम दे सकें उन एंगल्स को। अच्छा, खोड़ो साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करी रिगार्डिंग द डिवाइड, द वाइडनिंग ऑफ द डिवाइड. सो एंड देयर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट ऑब्वियसली. तो उसकी जो सबसे मैं हमना की ऑब्जर्वेशन लेना चाहूंगी, बिकॉज शी हैज स्पेंड दिस टाइम in the UK, the entire time in UK. Hamna, being a student, and you were not uh, you were not working. ठीक है, so being a student and interacting with a new community and making new friends and getting to know an entirely different public sphere. So how have you experienced that widening of the divide over in the UK in that setup? आई थिंक इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज, बट जब आप अपने मुल्क से वेस्ट को देखते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर आपको नजर आती है। और जब आप एक्चुअली यहाँ आके रहते हैं, जब मैं शुरू में यूके आई एक्चुअली केम हियर इन सितंबर लास्ट ईयर, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी that there were times when I felt like कि पाकिस्तान is like so much better and I would do anything to go back to my own country, at that point in time. लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी जो यूके के अपने मीडिया आउटलेट्स ने कवर की, जिसमें जो है वो वाइडनिंग डिवाइड की बहुत ज्यादा बात की गई। बिकॉज यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ कि उस तरह के इश्यूज जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी सिमिलर सिचुएशंस यहाँ पे भी थी। जैसे हमने पर्टिकुलरली देखा कि स्कूल चिल्ड्रन उनको घर से पढ़ना पड़ा। सो यूके के अंदर भी ये इशू रहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वल्नरेबल कम्युनिटीज के, पुअर कम्युनिटीज के, जिनके पास एक्सेस नहीं था टू टैबलेट्स और लैपटॉप्स, ठीक है, जिनके पास एक्सेस नहीं था टू इंटरनेट, ठीक है। इस तरह बहुत सारी हमने इस तरह की यहाँ पे स्टोरीज देखी जिसमें जो है पर्टिकुलरली हाउसिंग के ऊपर बात की गई यूके में लोगों के लिए, कि जो क्रैम्प्ड हाउसेस के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जनरली भी देखा जाए तो जो पाकिस्तान में फिर मुझे लगता है कि थोड़े कुछ ज्यादा और बड़े घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना जनरली भी जो नॉर्मल घर होते हैं वो काफी जो है ना छोटे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हमने यहाँ पे स्टोरीज देखने को जो है वो मिली। ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि जब आप एक नई कंट्री में आते हैं तो आप उस वक्त उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोविड ने वो वाइडनिंग डिवाइड को इस तरीके से एक्सपोज कर दिया दैट आई वाज एक्चुअली एबल टू सी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, एंड व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज दैट दे particularly face here or have here that wouldn't have been talked about अगर पेंडेमिक नहीं होता, फॉर इंस्टेंस उस तरह की स्टोरीज आई डोंट थिंक की जा रही होती। एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा यूके में रिपोर्टिंग का, वो बेम कम्युनिटीज के ऊपर रहा, ठीक है, कि किस तरीके से बेम कम्युनिटीज जो है डिस्प्रोपोर्शनटली अफेक्ट हुई है पेंडेमिक से इस पूरे अरसे के दौरान। और इस तरह की स्टोरीज जो है वो पेंडेमिक से पहले उस तरीके से नहीं की जा रही थी जो अब की गई। Okay. खोड़ा साहब, आप के लिए मेरा क्वेश्चन है कि now coming towards the early days of the pandemic, और हमने ये देखा कि there was an abundance of content and there was a rapidity when it comes to the dissemination. Also dissemination, it was more a part of the social media platform, जैसे कि WhatsApp, close WhatsApp groups especially. अच्छा, when all of this started, so obviously there was a panic, and the impact of misinformation, it started trickling in. Social media companies they actually formulated their ways to deal with it. ठीक है, कि जहाँ पे फेसबुक ने जो है वो फिल्टर्स अप्लाई किए और जो है वो
and only the credible Yeah. profiles or accounts could stay. And even WhatsApp had this COVID-19 information hub, so ताकि जो है वो लोग उससे credible information seek कर सकें. Talking about the mainstream media organizations in Pakistan, did they have any coping mechanism, or did they formulated any coping mechanism to deal What do you mean by coping misinformation? mechanism? Sorry. I mean, what kind of filters Filter. did they come up with? To be honest, I'm not 100% sure what kind of filters they did. And there's a reason for that, because my place in the particular, I don't deal with news gathering or the bulletin, right? I do my show, I go home. But what I did do is that I suggested to the Dawn management, because I have worked previously in the news department, so I know कि मतलब ये काम कैसे होता है. So what we did is that we made information points based on the information we had at that point. Anything जिसमें doubt था वो मैंने कहा कि यार निकाल दो. So I made that for them, and we were running that in that little Bloomberg thing, and we had a special ticker. So we did that. Did some misinformation creep through? Sure, it did. Sometimes it's inevitable. देखें जी, when the governor of Punjab at that point in time goes on TV and says कि जी अगर आप गर्म पानी पी लेंगे, मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं है, लेकिन कमोपेश ऐसी उसने बात की थी, गर्म पानी पिएंगे तो वो असल में ये 2 दिन के लिए आपके हलक में रहता है, जैसे कि मतलब ये कोई एयरपोर्ट का डिपार्चर लाउंज नहीं है बॉस, ठीक है ना, कि योर फ्लाइट्स बीन डिलेड, यू आर गोना हैंग आउट हियर, इट्स अ वायरस फॉर गॉड सेक्स, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ अ वायरस वर्क्स, ओके. तो एंड आई नो कोई इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी, वो मुझे भी वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ था, सही है, सबको वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ था. उन्होंने लेकिन टीवी पे बोल दिया, अच्छा अब उनका क्लिप है, टीवी पे चलाना भी है. सो देन द ओनली थिंग आई कुड डू इज कि जब तक मेरा शो आता था मैंने कहा कि ये आपने क्लिप सुना होगा टीवी पर, और मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एक्चुअली देखें, एक तरह से उस मिस इन्फॉर्मेशन का जाती तौर पर, टू बी कंप्लीटली सिनिकल अबाउट इट, मेरा बहुत फायदा हुआ था. और वो ऐसे हुआ था कि देन आई कुड स्पेंड हाफ द शो debunking misinformation, you know. So वो कहते हैं ना कि when life gives you lemons, so we took those lemons and we turned them into content, which is what we do. I mean, you know, I mean, it is, I'm sorry to say, but it is a very cruel profession, and it has to be, ठीक है, because देखें, जब आप कोई, अब मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी, ठीक है, so every single day, what would we wake up to? We would wake up to news stories and footage of people ripped apart in bomb blasts. You cannot emotionally connect with each one of those stories, because if you start to do that, you will be unable to report on them without breaking down. तो फिर आपका ब्लैक ह्यूमर आ जाता है इसके अंदर, you know. तो यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ा कि यार सही है, this is terrible. What do we do with it? How do we work with it? Because at the end of the day, it's raw material for us. And I mean, as cruel as that may sound, that is, however, the reality. And that's also the only way you can do this job and stay relatively sane. And I say relatively because we're all a little bit mad, you know, much like the Alice in Wonderland quote, you know. But yeah, so we tried, and but it was situational. It was situational. जैसे कि अगर मैं देखता हूं कि यहाँ इस चैनल, यहाँ पर गलत खबर चल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल इवन ऑन जियो, तो आई कॉल अप अ फ्रेंड इन जियो एंड आई बी लाइक, खुदा खौफ करो यार, इससे पहले कि समवन टेक्स अ स्क्रीनशॉट एंड डिसेमिनेट्स इट एवरीवेयर. एंड इट्स नॉट कि दे वर एक्टिवली ट्राइंग टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, उनको पता नहीं था. देयर आर अ लॉट ऑफ लिंक्स इन दिस चेन, ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम जो सोच रहे हैं ना कि यार नहीं, पूरे न्यूज रूम को बुलाया और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई, कहने में बहुत अच्छा है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, और ना ही शायद ऐसा हो सकता है. सो यू डू फायर फाइटिंग, यू ट्राई टू टेल देम कि यार ये चीजें हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, आप प्लीज इन पर ही रहें. आप अपनी तरफ से क्रिएटिव होने की, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते कोशिश ना करें, क्योंकि वहां फिर तबाही हो जाती है, एज आई हैव ऑफन फाउंड. तो ये यही था. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मेन स्ट्रीम मीडिया वाज नॉट द प्रॉब्लम हियर, ठीक है. Even I would argue कि Facebook was not so much a problem. सारा जो मसला हुआ है ना, वो WhatsApp की तरफ से हुआ है, ठीक है. और WhatsApp ने अपना इन्फो सेंटर बना दिया. मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि आपके जो 70 साल के रिटायर्ड अंकल बैठे हुए हैं ना, जो हर एक चीज को ज्यूइश से उन्हीं साजिश समझते हैं, वो कोई हेल्प सेंटर पे नहीं जाने वाला बीबी. उसने 1 फॉर इन्फॉर्मेशन और 2 फॉर वेरिफिकेशन नहीं दबाना. उसने यही समझना है कि नहीं, बिल गेट्स यहूदी लॉबी का बंदा है,
और उसने वैक्सीन के अंदर चिप डाली हुई है, कभी ये नहीं सवाल पूछेंगे कि सर आप पर चिप जाया क्यों की जाए। ठीक है, आपकी औकात क्या है यार, आप तुम हो कौन कि तुम्हें बिल गेट्स कंट्रोल करना चाहेगा यार, तुम तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू नो, सो दिस, सॉरी गो ऑफ ऑन अ रैंट, बट दिस अपसेट्स मी बिकॉज आज तक अभी दो घंटे पहले मुझे एक मिस इन्फॉर्मेशन इस पे आई है। मैंने कहा कि यार सही है यार, इफ यू बिलीव दैट ड्रिंकिंग गार्गलिंग ब्लीच विल क्योर यू, मैं आपके घर ब्लीच पहुंचा देता हूं, बिस्मिल्लाह करें, अभी अभी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू लिसन टू योर नॉनसेंस अगेन। You know, it's sort of like Darwinism, but directed Darwinism. You know, जो मानते हैं इन चीजों को, मैं तो कहता हूँ सबको ब्लीच ही पी लें, कम से कम निजात तो मिलेगी बाकियों को। हम ना you are exposed to new concepts of multimedia journalism now. ये अभी खोड़ो साहब ने जो बात करी है, what do you think कि किस तरह incorporate हो रहा है आपकी learning experience में as part of your education at university? जिस तरह ज़रार आपने बात की जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि I mean sometimes I am not only playing that role of a journalist in the newsroom but also on the family WhatsApp group where you have to like keep on all of those tweets. Like I remember that शुरू में मैं एक स्टोरी थी जो बहुत सारे पाकिस्तानी publications में cover थी. There was actually a doctor in the United Kingdom who was a herbal doctor and he claimed that सना मक्खी से जो है he actually 150 COVID patients recover हो गए हैं, and that story got so much publicity. It was viral like anything, and then people were actually buying those, Sana Makki leaves, or some people even ended up in hospital because उसके access use से obviously आपको diarrhea हो सकता है and all of those other things. Obviously right now जो जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से मेरे पर्टिकुलर कोर्स में जो मैं पढ़ी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सिखाया जाता है बिल्कुल कि फैक्ट चेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी बार वो एक ऐसा प्रोसेस है जो मिस आउट हो जाता है न्यूज रूम्स के अंदर, स्पेशली अगर आप एक फास्ट पेस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। और शुरू में ज़ाहिर है जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं थी, तो उस वक़्त फैक्ट चेकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एंड नो मैटर व्हाट न्यूज़ रूम्स कितनी कोशिश करें रिस्पॉन्सिबल होने की, लेकिन वो जो एक जंग है ब्रेकिंग न्यूज़ की एंड टू एक्चुअली ब्रेक द न्यूज़, बी द फर्स्ट वन टू पुट दैट न्यूज़ आउट देयर, उसकी वजह से ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा स्प्रेड होती है। Right now I am actually learning about fact checking tools and other things, and how personally अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, आपको कितनी बार डबल चेक करना है, किस साथ डबल चेक करना है, ये सारे टूल्स हैं जो we're learning right now. If I may just interject for a moment, just yesterday, this clip played on PTV in which this person was invited. In fact, here's the clip. I don't know if you guys can see it. But he actually went on PTV saying कि जी मैंने एक herbal cure बना लिया है कोरोना के सारे symptoms के लिए। ये कल की बात है जी, ये ठीक है, ये मतलब मैं मार्च 2020 की बात नहीं कर रहा, दिस इज yesterday. अब मतलब शायद बेहतर हो मैं ही ब्लीच पी लूं, अगर ये चीजें तो रुकने नहीं वाली फिर, so anyway, I'll let you carry on. बिल्कुल। हया, आपकी जो एंगेजमेंट है as part of your whole filmmaking experience, you interact with communities, ठीक है? और जो मैंने अभी बात करी थी कि जी social media companies had to jump in और उन्होंने filters apply किए in order to control this flow of misinformation. लेकिन there's a plenty of content as far as social media is concerned, digital platforms are concerned, जो कि regional languages, और एक्सपीरियंस ये रहा कि जब तक वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं किया जाता सोशल मीडिया कंपनीज को या डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनर्स को, उस वक्त तक उस पे कोई उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है? आपका क्या एक्सपीरियंस है व्हेन यू वर्किंग विद डाइवर्स रिमोट कम्युनिटीज इन पाकिस्तान? तो ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, आपका क्या ख्याल है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस
आई थिंक मैनेज तुम काश मुझे पता होता कि मैनेज कैसे किया जा सकता है। Yeah, seriously. काश हम सबको यही आता होता तो हम अपनी नौकरियां सहाफत की छोड़ के फिर असल काम पे लग जाते। बट हाँ, बट आई थिंक ये है कि मतलब मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन का कोई रीजन नहीं होता, मिस इन्फॉर्मेशन का कोई मजहब नहीं होता, मिस इन्फॉर्मेशन का कोई जेंडर नहीं होता और इसकी कोई ज्योग्राफिकल हदूद नहीं होती। और अगर हम ये स्पेशली कराची जैसे अर्बन सेंटर्स में बैठ के अगर हम बिल्कुल ये अज्यूम करें कि वो किसी खास जगह के लोग या शायद रूरल जगहों के लोगों को ज़्यादा यकीन आ जाता हो मिस इन्फॉर्मेशन पे, तो मतलब मैं बहुत बहुत जज्बे के साथ ही कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब झूठ के वही बात है कि जैसे झूठ के कोई पैर नहीं होते, उसी तरह आई थिंक झूठ बिलीव करने के लिए भी कोई स्पेशल कानून की जरूरत नहीं होती। इट इज अक्रॉस द बोर्ड। आप कराची में भी देखें, मतलब हम अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स से अगर देखें और फिर जूम आउट करके जो जर्नलिस्ट के ग्रुप्स बने हुए हैं, खवातीन Yep. जर्नलिस्ट के ग्रुप्स बने हुए हैं, यंग जर्नलिस्ट के फेसबुक ग्रुप्स बने हैं, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है। एंड एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सैड टू आल्सो सी कि कभी अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन तो जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी फ्लोट कर रही होती है। Yep. एंड देन समवन हैज टू बी द कॉलर ऑफ द बुलशिट एवरी टाइम कि एक मिनट ये गलत है, दिस इज फेक, दिस इज फेक। तो वो वही होता है कि एक दो सड़िए लोग होते हैं जिनका काम बेचारे ये हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, और बाकी बाकी जो है बाकी सबका काम है कि दे सनातन जो है वो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते रहो। तो आई वुड से कि मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि कोई भी जबान बोलने वाले हो, चाहे वो उर्दू बोलते हो, चाहे वो ज्यादा अंग्रेजी बोलते हो, चाहे वो पश्तो बोलते हो, चाहे वो सिंधी बोलते हो, मतलब ये कि कोई सनसनीखेज बात हो जाए या सना मक्की आ जाए तो उसको सब ने ही इस्तेमाल करना है, कोई कोई रोक नहीं सकता उसको। और मुझे जब अभी आप ये सवाल के जवाब हमना और जरार दे रहे थे, तो मुझे एक्चुअली यही लगता है कि मतलब मीडिया पर एक जिम्मेदारी तो जाहिर है कि वो अपने फैक्ट्स को बिल्कुल ठीक से और चेक करके ऑन एयर करे या प्रिंट करे, पब्लिश करे। लेकिन मतलब मैंने पाकिस्तान में दो, आई थिंक ये पूरी दुनिया में अप्लाई करती हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहीं की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी होप कि ये फिक्स हो जाए, बाकी सब तो देखी जाएगी। दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जब तक वो भी फिक्स नहीं हो सकती विद रिगार्ड्स टू कोविड, तो फिर हम मीडिया से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि वही सिर्फ बार बार जो है वो ठीक इन्फॉर्मेशन फ्लोट करवाए। एक तो ये कि जब व्हाट्सएप पे जनरली मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज जो कुछ भी फ्लोट होता है, तो मतलब ये हम इस पे बहुत मजाक करते हैं। इट इज अ फनी थिंग समटाइम्स के ओ ओल्ड अंकल सिटिंग ऑन व्हाट्सएप, या ओ अम्मी कुछ तो सोच डबल चेक कर लिया करें, राइट? बट आई मीन दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ मीडिया लिटरेसी, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट चेक। सही है, मतलब फैक्ट चेकिंग का जो काम है वो ठीक है, मतलब जर्नलिस्ट की तो घुट्टी में उसको पिला दिया जाता है, तो हम अंडर ग्रेड लेवल से ऊपर जब भी जाते हैं जिंदगी भर हम फैक्ट चेकिंग ही करते रहते हैं। कोई चीज लिखी दी हो, कोई कहीं पे टाइपो नजर आएगा, कहीं पे फैक्ट जो है वो अगर गलत लिखा हुआ है वो नजर आएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप ओल्ड और यंग लोगों को भी कंपेयर करें तो ओल्डर लोग आपको डिजिटल लिटरेसी से ज्यादा आरी नजर आते हैं और वो ज्यादा आपको ससेप्टेबल नजर आते हैं टू बिलीव इन लाइज। फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी की डेथ की खबर आ जाती है कि फलाने शख्स का इंतकाल हो गया, it is always people like above, I would say like 40 जो आपको नजर आएंगे जाके फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब चेक भी नहीं किया कि वो बेचारे वाकई में मतलब चले गए दुनिया से या नहीं। एंड आई हैव हैड मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स अपने कजन्स में, कि जहां मतलब मुझसे बाकायदा यानी मुझसे 20-20 साल छोटे कजन जो हैं वो अपने पेरेंट्स का मतलब उन्हीं के सामने बैठे हुए मजाक कर रहे होते हैं कि अम्मी का तो ये है कि उनको कोई भी चीज हो जाए वो नीचे जाके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देती हैं। हालांकि वो जो कजन है वो 14 साल की है, सही है, शी हैज नॉट गॉन टू जर्नल स्कूल, शी इज सच जस्ट अ किड एट स्कूल। बट समहाउ ये जो जनरेशन है जो मतलब गूगल खुद अब 18 साल का हो गया है, सो वी आर लुकिंग एट लाइक एनीवन हु इज नॉट एन एडल्ट राइट नाउ हैज ग्रोन अप इन द सर्च इंजन जनरेशन, and all of them, you will see that they are smarter and like smarter about not believing the news. They will always have some sass to them and they will always say कि क्या मतलब है, कहाँ पढ़ लिया तुमने, एक चीज पढ़ ली तो ऐसे। and they've not been trained in media or media literacy, digital literacy, journalism, but they know it because they've grown in a generation where they've been consuming digital media all along. जो हमारे से बड़े वाले जनरेशन है, like 45 and above, 50 and above, उधर तो मसला ये है कि they have grown up reading books and reading newspapers, and suddenly they're bombarded with this onslaught of information, so they probably believe that everything that gets published anywhere
It's true because that is the culture that they witnessed when they were growing up. उस वक्त तो उम्मत अखबार भी नहीं था उनकी दुनिया में, राइट? मतलब ये गन तो हमने देखी है, और फिर उसके बाद अब जो है वो एक अलग चीज है. तो एक तो मुझे लगता है कि मतलब डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, हम इतने एनजीओज हैं जो कि लाखों रुपए खर्च करती हैं हर साल ऑन ट्रेनिंग द यंग, बट आई रियली विश, आई थिंक अब तो आईना हमारे सामने है कि वी रियली नीड टू डू इट विद आवर पेरेंट्स एंड उससे ऊपर की जनरेशन. एक तो ये बात हुई, और दूसरा विद रिगार्ड्स टू द पेंडेमिक, आई फील लाइक ये बहुत ही एक मतलब ऑपोजिट टू जर्नलिज्म वाली चीज है, बट यू नो व्हाटएवर द गवर्नमेंट सेज और डज इज पीआर और प्रोपेगेंडा, यू नो, एट इट्स वर्स्ट, राइट? एनी गवर्नमेंट, सही है, आप उसको हमेशा फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते. उनका काम होता है, गवर्नमेंट्स का काम होता है कि वो चीजों को छुपाते हैं, कवर अप करते हैं, दे ट्राई टू शुगर कोट थिंग्स. बट दिस गवर्नमेंट, आई मीन हमारी जो पाकिस्तान में है, उसके तो खुद के स्टैंडर्ड्स इतने शेडी रहे हैं विद रिगार्ड्स टू प्रैक्टिसिंग एसओपीज, विद रिगार्ड्स टू टेकिंग दिस सीरियसली, दैट हाउ आर वी रियली एक्सपेक्टिंग कि हमारा आम शख्स जो ज्यादा चीजें नहीं पढ़ता है, वो एक ही दफा रात में खबरनामा देखता है या एक शो देखता है, या कोई एक दो टॉक शोज देखता है रात में, हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब इमरान खान साहब कैन कम एंड मेक सच अ कैरलेस स्टेटमेंट कि ये तो एक आम सा फ्लू है, when people like hundreds of thousands of people had already died in the world, and he had the audacity to come on screen and say ये एक मामूली सा फ्लू है, and he had the audacity to do a in-person meeting wearing a mask when he was COVID positive. I mean, इसके बाद क्या रह जाता है? Like आपका सबसे popular leader who's not even hated by people, you know, like some people dislike him, but he is still, you know, like he is like surprisingly someone who still like who people still like, you know, they find reasons to like him, and yet this person doesn't even use his popularity in the right way. तो फिर हम क्यों समझ रहे हैं कि जी हम किसी वीकर इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक क्लास के बंदे को देखें कि वो मास्क नहीं पहनता तो हम कहें कि वो ये गरीब लोगों का ये प्रॉब्लम है, ये मतलब यहाँ आपके एचएसएन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को नहीं समझ आ रही, तो फिर क्या रह जाता है, राइट? सो आई फील लाइक the government needs to do its PR and propaganda right, and the awam needs to be given more digital literacy, and only then the job of the media can be done rightly. Varna media to now works in a silo, honestly. So much of it goes under the radar because of Facebook, because of Instagram, because of Twitter, WhatsApp, कि चीजों को फैलना हो तो कोई कसर तो रहती नहीं है. मतलब हम कोई जियो टीवी या डॉन टीवी का तो इंतजार नहीं करते फॉर यू नो फॉर अ सर्टेन फॉर कि इस ये खबर ब्रेक करेंगे. खबर तो कहीं से भी आ जाती है. और फिर ये हमारी लीडरशिप इतनी फजूल है कि इनको क्या कहा जाए ना. अगर आप कह दे तो उस पर भी उनको बहुत गुस्सा आता है. तो ये भी एक बड़ी चीज है कि उनको आप बुरा भी नहीं कह सकते बिकॉज देन दे गेट वेरी एंग्री अबाउट देयर ओन carelessness. So I feel like the propaganda in this country also needs to be done better, not just journalism. Propaganda also needs to improve. और वो जो खबर आ जाती है तो थोड़ा सा आप भी इसका सही जवाब दीजिए कि Rabia, we can't hear you very loudly at all. Actually, sorry. I think कोई पंखा चल रहा है शायद आपके यहाँ. Can you hear me now? चिल्ला के बोले. Can you hear me now? That's better. अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जी वो खबर आ जाती है, ठीक है, और जो है वो या तो वो कोई ब्लेम गेम होता है, ठीक है, कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी पे ब्लेम करती है, वो तीसरी अथॉरिटी को ब्लेम करती है. तो थोड़ा सा ये जब ये नैरेटिव आता है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की तरफ से, तो मीडिया क्या किस हद तक अलाउड है कि वो क्रिटिकल हो. और दूसरी बात ये कि दूसरा बात ये कि जी जो स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स हैं वो भी अथॉरिटीज के पास से आ रहे हैं. किस हद तक मीडिया का मार्जिन है कि वो स्केप्टिकल हो. नहीं, स्केप्टिकल होने का हमारा तो पूरा मार्जिन ही स्केप्टिसिज्म है. ठीक है ना. जहां तक आपका पहला सवाल, जी नहीं देखें, जहां तक आपका पहला जो सवाल है उसका मैं सही तरह जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये बड़ी सिचुएशनल चीज है. आपने कहा ना कि कितनी इजाजत है या कितनी गुंजाइश है तनकीद करने पे, तो पहले तो मुझे सवाल पूछना होगा कि किस पहलू पर हम तनकीद कर रहे हैं. ठीक है. इट इज नॉट लाइक वी आर डिस्कसिंग यू नो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी या ऐसे कुछ ऐसी चीज हो रही है. वहां पर देयर आर रेड लाइंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन उसमें भी बात करने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है. जहां तक कोविड की बात है जी, तो मेरा ख्याल है कि किसी ने हमें नहीं रोका कि हम सवाल पूछें, किसी ने हमें नहीं रोका कि हम तनकीद करें या तारीफ करें. मसला ये है कि the problem जो I think and a lot of us make this error is कि don't criticize for the sake of criticism and don't praise for the sake of praising it. ठीक है. जो
credit where credit is due and blame where blame is due, to the best of your knowledge and to the best of your ability. तो अच्छा, जहां तक ये जो आपकी स्टैट्स की बात है, सो वेरी अर्ली ऑन हमने एक फॉर्मूला सोच लिया था कि यार देखें, गवर्नमेंट से जो स्टैट्स आ रहे हैं, जैसे आज भी आते हैं ना कि यार आज 12% पॉजिटिविटी है, कल 13% पॉजिटिविटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने लोगों को आपने टेस्ट किया है उसमें से इतने फीसद पॉजिटिव हुए हैं। तो पहले तो आप लोगों को यह समझाएं कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। अच्छा, अब इसमें एक तोड़ है, अगर मैंने सिर्फ 10 लोगों को पॉजिटिव को आज टेस्ट किया है, whether because I don't want to या whether because मेरे पास capability नहीं है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। हम assume नहीं कर सकते कि what is operating at what particular time, right? मैंने अगर सिर्फ 10 को टेस्ट किया है और वो 10 मेरे घर वाले में, उनमें से एक पॉजिटिव निकला है, तो मैं कहूंगा 10% पॉजिटिविटी। कैन यू अप्लाई दैट टू अ होल सिटी? नॉट रियली, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, हमने सबने सोचा कि हम अपनी नजर रखेंगे अस्पतालों पर, हम अपनी नजर रखेंगे आईसीयूज पर, इमरजेंसी वार्ड्स पर, वेंटिलेटर्स पर, ठीक है, क्योंकि आप इन्फेक्शंस के नंबर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं, वेदर विलफुली या वेदर जस्ट बिकॉज कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है प्रॉपर रिकॉर्डिंग की। आप अमवात को नहीं छुपा सकते, ठीक है। अब कि आप भारत को देखें, गवर्नमेंट फिगर्स फॉर कैजुअलिटीज आर रिडिक्युलसली लो, and frankly speaking they are deliberately understating it because of the toxic neo-Nazi fascist mentality of the Modi government. This is beyond this. उनका तो सारा फोकस है इमेज कि यार करोड़ बंदा मर जाए लेकिन मैं अच्छा लगूं, ठीक है ना। I mean, and again, going back to my original point, it only deepens, accelerate existing trends. ये उनका पहले भी ट्रेंड था, लेकिन अब वो उस ट्रेंड को आप टाइम्स 100 कर दें तो आपके सामने ये है। अच्छा, आप ये फिगर्स रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई शमशान घाट है और उसके सामने 100 मैयतें पड़ी हुई हैं, ये विजुअल को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कब्रिस्तानों से बात की, हमने डायरेक्ट डॉक्टर से बात की, हमने डायरेक्ट आईसीयूज को देखा। तो दैट इज माय मेट्रिक एंड दीज आर द थिंग्स यू लर्न एज दिस थिंग अनफोल्ड्स। I can just share one of my personal experience कि मैंने एक जी। दिन ये टेस्ट करने की कोशिश करी कि हमारे पूरा दिन जो है वो किस किस्म के विजुअल्स हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। तो आई कुड नॉट एक्चुअली गेट एन आइडिया कि जी हमारे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो व्हाट इज द व्हाट आई मीन मुझे कोई इंसाइट नहीं मिला। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो रिपोर्टिंग होती है पूरे दिन की, there are multiple shows which do that, और there was one particular show which I was watching, और जो पॉजिटिव आउटलुक प्रोवाइड किया जा रहा था रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, रिगार्डिंग द इंडस्ट्री एंड द डिसीजन मेकिंग ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। और Were you watching ARY? नो नॉट ARY। बोल। I was watching Dunia. Close enough. Anyway, जी continue. Sorry. Go on. तो जब मैं जनरल पब्लिक परसेप्शन की बात करती हूँ, अगर हम उस पर गौर करें, वो शेप अप कैसे होगा? I mean, there was nothing for the whole day on the TV channels, and then at the end of the day, would गवर्नमेंट की सक्सेस जो है वो फाइनेंशियल फ्रंट पे बताई जाए तो देखिए, first of all, understand the nature of the beast. They're not there to mold public perception. They are there. I mean, and I'm assuming that this reporting is, I mean, this sort of closes the line into propaganda. This is them showing the government, look, we can be a better PTV for you than PTV. Okay, तो थोड़ा सा भाई को भी इश्तिहार दे दो ना यार, भाई का भी रोजी रोटी चला दे। So yeah, that's what happens. I mean, that's just the reality of it. Well, okay. This is why I'm cynical, baby. This is where it comes from. I could tell you stories, but we don't have the time for that. Ji. Hamna, I would definitely want to have views from you. Okay, populist communication है, as far as the UK media is concerned, तो उस पे आप I'm sorry, I can't hear you. Okay, जी, can you hear me now? That's जी, fine. better. हमना आप अपनी एक brief observation share कीजिए regarding the any kind of populist communication
far as the UK media is concerned. Can you hear me? यूके के अंदर जो है हमने जो पर्टिकुलरली मीडिया है वी हैव सीन के यू नो दे हैव एक्चुअली दे हैव गिवन ऑब्वियसली कवरेज टू एंटी वैक्सर्स, ठीक है। उसके अलावा जाहिर है उनको दी गई है कवरेज, और बकायदा मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिकेशंस के अंदर इंटरव्यूज देखे हैं एंटी वैक्सर्स के, मतलब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब दे शुड नॉट हैव बीन गिवन दैट स्पेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन अराउंड, राइट। But unfortunately, that has been the case. अभी मैं पढ़ी थी यूके की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा right now the UK is kind of have bit of control over things as far as COVID is concerned because उनका जो vaccination program है. But the UK's chief medical officers recently said that the UK is now going to treat COVID as a seasonal flu. Now जब वो ये कहते हैं कुछ लोग उसको understand करेंगे what he means by that, ठीक है, in the sense कि we have to learn to live with the virus. But some people, due to the limited understanding, will downplay the severity of the virus, which is again a problem. And we are seeing that right now. When I go out, UK has recently lifted lockdown in March. And when I go out, I see a lot of people without masks. And this is particularly the young generation that I am talking about. यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू ये भी है कि लोग जो है ना लाइक उनको ये है कि भाई हमारा राइट, ठीक है, हम मास्क पहने या ना पहने, यू शुडंट से एनीथिंग टू अस। मैं जब सुपरमार्केट जाती हूँ आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी सिचुएशंस वेयर पीपल आर जस्ट आर्ग्यूइंग, ठीक है, लोगों के साथ वो उनको मास्क दे भी रहते, देयर लाइक नो यू कांट टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक तो यहाँ पे वो वाला बहुत फैक्टर भी है। एंड वी हैव सीन कवरेज ऑफ दीज मास रैलीज इन लंदन एंड अदर प्लेसेस अक्रॉस द यूनाइटेड किंगडम, जिसमें जो है वो लोगों ने एंटी वैक्सर्स ने पता नहीं क्या क्या कहा, पर्टिकुलरली जैब्स के बारे में, उसके अलावा कोविड के बारे में बहुत सारी मिसइंफॉर्मेशन फैलाई है। तो अनफॉर्चुनेटली it's not only a problem in Pakistan but across the world. Even we've seen that in the US as well. And recent times, if you've also seen that Twitter started putting disclaimers, ठीक है, tweets के ऊपर, be it President Trump's tweet or other people's tweets, especially अगर वो COVID से related disinformation फैला रही थी. But the thing is that there is a limit to what these social media platforms can also do. And there's so much that they can't do. Obviously, they can't crack down on every single person who is sending that WhatsApp forward, which is actually a fake news. So the responsibility not just lies on the media and the social media platform, but also the people who are using it. Right. Thank you, Anya. तो यहाँ पे जो हम हमना की बात से इन्फर कर रहे हैं कि जी यूके में I have shield. I have shield. decision making as far as the general public is concerned. लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, so there are spheres of influence, ठीक है, एक religious sphere of influence है, एक cultural sphere of influence है, एक जो फैमिली में भी जो है hierarchical हमारे पास स्ट्रक्चर है कि जी जो अब्बा ने कह दिया या जो बड़े ने कह दिया, और उसमें उस वजह से there are invisible people. औरतें हैं तो उनका कोई से नहीं है, बच्चे हैं तो उनका कोई से नहीं है। अब अगर बच्चे हैं वो इस बात पे बिलीव करना चाहते हैं कि जी कोविड एग्जिस्ट करता है, या औरतें हैं जो इस बात पे बिलीव करना चाहती हैं कि जी कोविड एग्जिस्ट करता है, तो अब जो आगे 6 महीने आ रहे हैं, जो अगला साल आ रहा है, एंड वी विल बी एज जरार साहब सेड इन द बिगिनिंग कि जी अब हम जो 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 स्टोरीज रिपोर्ट कर रहे होंगे, जो इश्यूज रिपोर्ट कर रहे होंगे, दे विल बी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो when there are so many invisible people, तो वो स्टोरी टेलिंग किस तरह से होगी, वो इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक है when it comes to the Pakistani society, when it comes to the men, the women, the children, all of them, जो जिस sphere of influence से belong करता है। आप लोगों में से जो भी इस बात करना चाहेगा, आप तीनों से मैं ये पूछना चाहूंगी and then we'll conclude. सॉरी आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही थी। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट के आने वाले जो महीने हैं उसमें किस तरह कवरेज होगी। आई एम सॉरी, आई डिडंट क्वाइट कैच यू। एक्चुअली आपने शुरू में यही बात करी कि जो
आगे आने वाला जो वक्त है, the next 6 months, the next year, so that Yeah. will be really crucial when it comes to the reporting and storytelling. अब जो issues Yes. आएंगे उस पे असल storytelling होगी. मेरा सवाल ये है कि जी we have so many invisible people. They are women, they are children, they are men, जो कि जिस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बिलोंग करते हैं. there's a religious sphere of influence. हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें भी एक दे आर डोमिनेंट रोल्स जिसमें बिकॉज ऑफ इट देयर आर इनविजिबल पीपल. औरतें हैं तो उनका से नहीं है कि अगर वो कोविड पे बिलीव करना चाहती है वो नहीं कर सकती. देयर आर चिल्ड्रन हु मे बिलीव कि जी कोविड एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि एक डोमिनेंट परसेप्शन है कि जी नहीं अल्लाह मालिक है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो है वो या फिर उसके उसके हवाले से जो एसओपीज हैं उसको फॉलो नहीं करना है अगर, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इनविजिबल हो जाती है. ठीक है, हाँ, तो हम लेकिन आई डोंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे या स्टोरी टेलिंग कर पाएंगे? देखिए उन तक पहुंचना प्राइमरीली हमारा काम नहीं है, उनकी तक पहुंचना प्राइमरीली हुकूमत का काम है. वी कैन रिपोर्ट, वी कैन ट्राई एंड गाइड, लेकिन मतलब देखें, इफ दे आर बाय डेफिनेशन इनविजिबल तो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, उनकी स्टोरियां तो वैसे भी कवर नहीं होती और कोविड के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं होंगी. This is just the reality of it. And also, as Haya said, the problem with those stories is that you have to go to where the story is. And in these times, that's become incredibly difficult. You know, so I will say एक चीज मैं कहूँगा, and this is going by the experience of covering polio, कि अब जो आपका जो मसला आने वाला है ना जी, is going to be anti-vaxxers. बिकॉज देखिए, हमने बहुत शोर मचाया है कि जी गवर्नमेंट के पास कितनी वैक्सीन हैं, गवर्नमेंट के पास कितनी वैक्सीन नहीं है. आप ये भी देखें कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं, नॉट दैट मेनी. ठीक है, मैं आपको एक जाती कहानी बताता हूँ. एक मेरी कजन है, शी लिव्स नियर मुल्तान. सो द अदर डे आई वोक अप एंड आई वेक अप लेट, तो उनकी 15 मिस्ड कॉल्स थी. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, वो फौत हो गया. आजकल बंदा यही सोचता है ना कि गुड न्यूज ऑलवेज स्लीप्स टिल नून. तो मैंने उसे कॉल की, उसने कहा कि यार मेरे सारे जो दोस्त हैं, मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि इस चिप के अंदर, इस वैक्सीन के अंदर जहर है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम ये वैक्सीन ना लगाओ. तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे से पूछ लेती हूँ कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए. मैंने कहा जी अभी मैं अपनी वालदा को लगा के वापस आ रहा हूँ, अगर जहर होता तो कसम से मैं नहीं लगाता, या कम अज कम अगर लगाने से पहले मैं मतलब विरासत के डॉक्यूमेंट्स तो साइन करा देता ना उनसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. तो बिस्मिल्लाह आप लगा लें. सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इट जी. हम आज तक समझते हैं कि पोलियो कतरे पीने से नामर्द लोग हो जाते हैं. हाँ, सो वी आर इन फॉर अ लॉन्ग वाइल्ड राइड एंड I'm quite looking forward to it. जी. I got one. I think, I mean, किसी sorry. मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि this would be your But I kind of appreciate it. भी कर सकते हैं इस part पे. Sorry? Right, I think I can't hear you, Rabia. So sorry. Okay, I'm saying कि हम अब conclusion की तरफ move कर रहे हैं. Whatever the statement which you are giving, so please add your concluding remarks too. Sure. I think मतलब मीडिया के हवाले से तो यही कहा जा सकता है कि आई थिंक ये अपहिल बैटल ही है, क्योंकि जिन जराए से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जनरली अब फैलती है वो तो दूसरे ही हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं. तो आई थिंक मतलब मुझे ये लगता है कि सिर्फ जर्नलिस्ट से एक्सपेक्ट करना कि वो सोर्स बनेंगे सिर्फ कि लोगों को शऊर दिलाने का, आई थिंक वो नहीं हो सकता. लेकिन मेरे ख्याल है जर्नलिस्ट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मौका है. ऑब्वियसली इसमें बहुत डिपेंड करता है कि न्यूज़ रूम में एडिटर्स कितना वक्त देते हैं और कितना अलाउ करते हैं लोगों को इन डेप्थ स्टोरीज करने का. लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा डेटा जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा हो सकता है. आई थिंक इस साल के आखिर तक भी वही वाली बात है कि जैसे अभी ज़रार कहते हैं कि हम कब्रिस्तानों में गए और हमने उधर से पूछा, लेकिन अभी ज़ाहिर डेथ्स तो सैडली चली रही हैं. तो मतलब इस साल के आखिर में ये जो सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं और केएमसी होता है जहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ये सारी चीजें आई थिंक मतलब ये जो और क्योंकि पाकिस्तान में भी एक पॉइंट पे लग ही रहा था ना कि यार इतने कम केसेस कैसे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की इन डेप्थ रिपोर्टिंग हो सकती है इफ वी गो टू आवर सिटी गवर्नमेंट, जहाँ पर भी डेटा कलेक्ट होता है, जहाँ पर भी अमवात के बाद लोग जहाँ पर जाते हैं, सिकनेस के बाद जहाँ पर जाते हैं. आई थिंक बहुत ज्यादा डिटेल्ड जर्नलिज्म हो सकता है टू स्टडी पैटर्न्स, ट्रेंड्स. आई थिंक पाकिस्तान के सारे सिटीज बहुत यूनिकली एक्ट करते हैं. मुझे तो बहुत मतलब
अम्यूजिंग बात लगती है कि इस्लामाबाद में कभी कुछ हो रहा होगा एंड सडनली कराची इज लो एंड देन इस्लामाबाद विल गेट इनटू अंडर कंट्रोल, कराची विल गो हाई एंड यू गो टू अदर सिटीज व्हिच आर वेरी पॉपुलेटेड लाइक फैसलाबाद एंड यू नो गुजरांवाला, मतलब जहाँ पर इतनी इतनी बड़ी आबादियां हैं, पेशावर, क्वेटा, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, आई थिंक अ लॉट ऑफ यूनिक काइंड ऑफ जर्नलिज्म कैन बी डन, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पेस पर मीडिया को खुद अपने लिए क्रिएट करनी है, जो कि मिलती नहीं है ज्यादा, क्योंकि कवरेज जो है वो फिरदौस आपा के बयान को ही मिलती है फिर एंड में, क्योंकि वो सबसे स्पाइसी होता है और वो रोजाना आ भी जाता है, यू नो, तो रेडीमेड खुद से आ जाता है, उसके लिए आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती. सो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ इन डेप्थ रिपोर्टिंग का स्कोप है in the months to come, but that really depends on whether we get the space for it or not. I would particularly like to talk about Pakistan vaccination campaign right now, क्योंकि अभी किक स्टार्ट हुई है. मैं जितनी मैसेजिंग देख रही हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग नहीं है, और अभी भी मीडिया से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है that they are going to actually debunk all of those myths about jabs, you know, and they are going to tell people why they should take the jab and जो जो issues हैं. यूके के अंदर उन्होंने पर्टिकुलरली एक चीज ये की है that the government actually collaborated with faith leaders in particular, ठीक है, उसके अलावा जो कम्युनिटी लीडर्स रहे हैं और इवन सेलिब्रिटीज जो कि मुस्लिम्स थे या बेम कम्युनिटीज से थे, ठीक है. और जनवरी में हमने देखा था एक सेज स्टडी आई थी जिसमें बेम कम्युनिटीज वर especially Pakistanis and Bangladeshis, they were 42% less likely to take the vaccine than the other groups in the UK. But over the past 4 months, just because of the campaign that the UK government has run in collaboration with different, you know, organizations and people, that number has actually gone really down, and people are now more than willing to take the jab. And मुझे और चीज ये लगती है कि particularly this is not the issue about कि आप सिर्फ, you know, elders को या कन्विंस करें वैक्सीन लेने में. मैं बहुत सारे ऐसे यंग लोगों से पर्सनली मिली हूँ, ठीक है, आर स्टिल रिलक्टेंट टू टेक द वैक्सीन. और पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे जो अपने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेयर, यू नो, हियर इन यूके राइट नाउ. So yeah, going forward, I think the government really needs to improve its messaging around the whole vaccination campaign. As for me, I'm just going to reinforce and agree with what Hamna just said. And especially जो इनका point था of reaching out to community leaders, faith leaders and celebrities and so on and so forth. And मैं आपको एक और example देता हूँ जो शायद हमारे लिए भी काफी relevant हो सकता है. वो है इराक का. ठीक है, अब इराक में people were very reluctant to take the vaccine. फिर क्या हुआ कि उनके एक लीडर हैं मुक्तदा अल सदर, ठीक है, और मुक्तदा अल सदर गए और उन्होंने वैक्सीन लगाई, उन्होंने अपनी फेसबुक पे लगाई, और उसके बाद लाखों उनके फॉलोअर्स आ रहे हैं. उनसे जब इंटरव्यू किया गया उन्होंने कहा कि जी अगर मुक्तदा अल सदर कह रहे हैं कि ये सेफ है, हम मान लेते हैं. सो यू हैव टू गेट पीपल वेयर दे लिव. ठीक है, someone who will respond to a faith leader or a religious leader, आप उसके सामने 50 डॉक्टर बिठा दें वो नई बात मानेंगे. अगर जो है जो सिर्फ साइंस पे बिलीव करता है उसके सामने आप 10 सेलिब्रिटी बिठा दें वो नहीं मानेगा. सो यू हैव टू हैव दिस मल्टी फैसेटेड थिंग. और बिल्कुल हमना यू आर राइट, वो अभी हम नहीं देख रहे. और हस्बे मामूल जब चीज जब बुखार मतलब बहुत ज्यादा 104 तक 105 तक पहुंच जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि यार शायद 1-2 पैनाडोल ले लेनी चाहिए. लेकिन इट विल बी बेटर टू बी प्रोएक्टिव इन दिस रादर देन रिएक्ट. मैं थोड़ा सा अपने कमिटमेंट को वायलेट कर रही हूँ. आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन कि Okay, I'm on 1% battery, so you know if I fade away, just don't blame me. ओके, सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि क्योंकि आपने वो बात कर दी इराक की, तो मैं मेरे जहन में चाइना और ईरान की जो है बात आ गई कि क्योंकि एक क्लोज सोसाइटी हम उसको कंसिडर करते हैं एज फार एज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, और उसका हमने बड़ा इम्पैक्ट देखा व्हेन द पैंडेमिक स्टार्टेड, क्योंकि चाइना एंड ईरान वर लाइक रियली रेलेवेंट फॉर अस एज फार एज द बॉर्डर्स वर कंसर्न एंड द होल सिचुएशन वाज कंसर्न. पाकिस्तान जो है, हाउ ओपन the media, the society overall is, how much we have things in place कि हम जो है वो आगे आने वाली सिचुएशन को डील कर सकेंगे, क्योंकि जो क्लोज सोसाइटी का इम्पैक्ट था वो हमारे ऊपर आया, ग्लोबल सिनेरियो पे आया as far as China and Iran is concerned. I would hesitate to put to define this in terms of open and closed societies.
And frankly speaking, I mean, you could arguably call China and Iran both closed societies, but that was not the operating factor here. Haya, would you please continue? Yeah, I have no idea what Zarar was going to say next, so I can't speak for him, sadly. Yeah. ठीक है जी. I think it was a really interesting conversation, and I wish कि हम इस बात को complete कर लेते. Unfortunately, technology नहीं साथ You देती. can post the caption, his answer in the caption when you post the video. I do that. I'll take his comments and then I'll. So, thank you so much, Haya. Thank you so much, Guru Saab. Very important. Thank you, Hamna, for your time, for your commitment, and it was such a valuable input from you. I hope कि हम ये तमाम चीज़ें जो हम क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, इसको हम we will be able to witness a better situation, a better tomorrow, and with ourselves being in good positions. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.